Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you will be fine and fit and preparing your examination very well. Myself, Dr. Irshad, and I'm here to discuss a portion of your class 11 zoology that includes respiratory system, circulatory system, and locomotion and movement. So, I'll be discussing these chapters mainly and particularly in context of your board examination. So all of you will already be very well prepared with these chapters. So what we are going to do right now is we are going to have a quick rapid revision of these chapters, and we are going to revise the most important questions from these chapters. ठीक है? तो without wasting much time, let us get started with the first question from your respiratory system. Okay. So the first question that I have kept here is the question about respiratory volumes and capacities. So the examiner will be asking you the question like this: describe various respiratory volumes and capacities. Okay. So let me remind you that these volumes and capacities are actually, these are the quantities which we measure by a technique called spirometry. There's a technique called spirometry which is also called lung function test. That lung function test or spirometry technique is used to measure certain quantities of lung functioning. Those quantities include the volumes and capacities. Okay. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आपके लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है, जैसे कि मैंने बोल दिया, these are measured by a technique called spirometry. तो पहले मैं यही यहाँ पे मेंशन करूंगा. I'll mention this thing only. Okay. So these quantities, that is respiratory volumes and capacities, are measured by technique called as spirometry, या जिसको आप शॉर्ट में कहते हो लंग फंक्शन टेस्ट. लंग फंक्शन टेस्ट. ओके, लंग फंक्शन टेस्ट. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इन वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को डिस्कस करते हैं. तो मैं आपको बता दूं, आपके पास मेनली 4 वॉल्यूम्स है. ठीक है, सो वॉल्यूम्स, ठीक है ना, मेनली आपके पास 4 है. ठीक है, एक तो आपका होता है जिसको आप बोलते हो टाइडल वॉल्यूम. फर्स्ट इज योर टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, next is your expiratory reserve volume. Okay, and next is your residual volume. ठीक है, तो वॉल्यूम्स आपके पास कितने हैं? वॉल्यूम्स आपके पास 4 है. ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, तो चलो पहले इन वॉल्यूम्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इन वॉल्यूम्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइडल वॉल्यूम को. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में टीवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टाइडल वॉल्यूम इज जस्ट द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इनहेल और एक्सहेल इन वन ब्रेथ. ओके, सो वन साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, whatever the amount of air that's going in or whatever the amount of air that's coming out is what constitutes your tidal volume. So simply, it is amount of air that is inspired or expired in one breath. Okay, and what is the value of this tidal volume? Average value, or what is the normal value of this tidal volume? It's 500 ml. ओके, तो मतलब 500 ml या आधा लीटर हम एयर इनहेल कर पाते और एक्सहेल कर पाते नॉर्मली एक ब्रेथ में. ठीक है, नॉर्मली. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन. ठीक है, तो कभी
फोर्स्ड रेस्पिरेशन करेगा, कोई फोर्स्ड इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, तो उसमें ये वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। नाउ तो ये पहला वॉल्यूम हमारा। अब नेक्स्ट वॉल्यूम जो है आपका है दैट्स इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम which is represented by IRV. IRV. So as the term speaks for itself, inspiratory reserve volume. So it is the reserve volume of inspiration. What do I mean by that? It is the amount of air that you can inspire after your normal inspiration forcefully. Okay? So after normal inspiration, I am trying my best effort, I am giving my best effort to inspire more amount of air. So whatever more amount of air I can inspire forcefully after my normal inspiration, that is called an inspiratory reserve volume. So it is the extra amount of air. It is the extra amount of air that can be inspired. That can be inspired forcefully. So I have to use force, forcefully, after normal inspiration. Normal inspiration. So after forceful, after normal inspiration, I am doing forceful inspiration. So whatever amount I can inspire by that, that is called inspiratory reserve volume. ठीक है ना? अब normal value कितना होता है इसका? Normal value इसका होता है 2500 to 3000 ml. So 2500 to 3000 ml इसका normal value होता है inspiratory reserve volume का, ठीक है? तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जिसको आप ईआरवी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एक्सपायरेटरी वॉल्यूम अगेन रिजर्व वॉल्यूम है जो आप एक्सपायर कर पाते हो। सो आफ्टर आई हैव नॉर्मली एक्सपायर्ड, तो जब मैंने नॉर्मली एक्सपिरेशन की उसके बाद मैं फोर्सफुली कितना और अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल पाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना। सो इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, इट्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, दैट कैन बी एक्सपायर्ड। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली, फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो किसी ने नॉर्मल एक्सपिरेशन की, नॉर्मली सांस छोड़ी, उसके बाद वो दम लगा के और कितना एयर बाहर छोड़ सकता है, दैट्स कॉल्ड एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 1000 to 1100 ml, ठीक है। अब देखो, मान लो किसी ने पूरा एफर्ट लगा दिया और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर भी बाहर निकाल दिया, यानी एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद जो वॉल्यूम लंग्स के अंदर बचता है वो हम फोर्सफुली भी बाहर नहीं निकाल पाते, यानी वी कैन नॉट एक्सपायर दैट, डजंट मैटर हाउ मच फोर्स डू वी अप्लाई, ठीक है, दैट कैन नॉट बी एक्सपायर्ड। अब वो जो छोटा सा क्वांटिटी ऑफ एयर बचता है लंग्स के अंदर जो हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। सो वी हैव द लास्ट क्वांटिटी रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना, आरवी, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज सिंपल, ठीक है ना, इट इज द अमाउंट दैट कांट बी एक्सपायर्ड इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ओके। और इसका नॉर्मल वैल्यू आपका होता है 1100 to 1200 ml, ठीक है ना, 1100 to 1200 ml इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। तो आपकी चार क्वांटिटीज है, चार वॉल्यूम्स थे, ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर करते हो 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम एक्स्ट्रा इंस्पायर कर पाते हैं फोर्सफुली 2500 to 3000 ml, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम यानी कि जो हम एक्स्ट्रा एक्सपायर कर पाते हैं आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है ना, 1000 to 1100, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर बच जाता है विच कैन नॉट बी एक्सपायर्ड इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, जो वहीं पे बच जाता है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट 1100 to 1200। अब देखो इन्हीं वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन से कैपेसिटीज बनती है, ठीक है ना। हम जैसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम के साथ कंबाइन करें तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है, ठीक है।
इसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो कुल मिला के 5 कैपेसिटीज बनती है। तो अभी कैपेसिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है ना। तो 5 कैपेसिटीज है, देयर आर 5 कैपेसिटीज, inspiratory capacity, expiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity and total lung capacity, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं inspiratory capacity से, ठीक है ना। Let us start from inspiratory capacity, inspiratory capacity, ठीक है ना। सो inspiratory capacity मेजर करता है आपका टोटल inspiratory potential, ठीक है ना। आप कितना टोटल इंस्पायर कर पाते हो जब आप एक स्टेबल स्टेट में हो, ठीक है ना। तो मान लो मैंने ब्रीद आउट किया था, ठीक है। आई हैव जस्ट नाउ एक्सपायर्ड, अभी मैं नॉर्मल स्टेबल पोजीशन में हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं इस पॉइंट से जब मैंने ब्रीद आउट किया है, ठीक है ना, तो मान लो ये एक्सीज है, तो ये मेरा ब्रीद इन है जिससे वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स के अंदर, एंड ये ब्रीद आउट है जिससे वॉल्यूम घटता है। अब ये मीन पोजीशन है, मान लो मैं मीन पोजीशन पे हूं, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं टोटल अपना इंस्पिरेटरी पोटेंशियल मेजर करूं, वो क्या होगा, वही होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वो क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करना होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मली सब लोग करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं एफर्ट लगाऊं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी ये टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना, यहां तक। और इसके बाद में फोर्स लगा के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मेरा टोटल इंस्पिरेटरी पोटेंशियल है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, या हम कभी कभी कहते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद टोटल अमाउंट कितना इंस्पायर कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है ना। और किसके बराबर होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना। सो व्हाट इज इट, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इट इज टोटल अमाउंट ऑफ एयर, that can be inspired after normal expiration. So total amount of air that can be inspired after normal expiration, so that is called inspiratory capacity. और किसके बराबर होती है inspiratory capacity, एक तो सबसे पहले इंस्पायर करता है इंसान टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद एफर्ट लगा के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इट इज टीवी प्लस आईआरवी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे कभी कभी हमें कैलकुलेशंस आती है, ठीक है। नाउ दूसरा हमारा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया, नाउ वी हैव एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मेजर्स योर टोटल एक्सपिरेटरी पोटेंशियल, आपका टोटल एक्सपिरेटरी पोटेंशियल मेजर करता है, ठीक है ना। तो मान लो ये इंस्पायर किया है, ठीक है ना। तो जब आपने इंस्पायर किया, इसके बाद आप एक्सपायर करने वाले हो, ठीक है ना। अब अगर मैं टोटल एक्सपिरेटरी पोटेंशियल आपका मेजर करूं इस पॉइंट से, ठीक है ना, वो बन जाएगा आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल ये आपने इंस्पायर किया है यहाँ पे, तो अगर आप इसके बाद एक्सपायर करोगे तो पहले आप टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करोगे, यानी कि इतना, ठीक है। उसके बाद आप अगर फोर्स लगाओगे तो आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपायर करोगे, ठीक है ना। तो ये जो दोनों का मिला के बनता है ये इतना टोटल, ठीक है ना, that is called as expiratory capacity. तो expiratory capacity is the total amount of air that can be expired after normal inspiration. So I have normally inspired like this, ठीक है ना, tidal volume मैंने अंदर ले लिया है। उसके बाद अगर मैं टोटल एक्सपिरेशन करूं, ठीक है, यानी टाइडल वॉल्यूम लेके और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेके, ठीक है ना, तो वो बन जाता है मेरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो सिंपली इट इज टोटल अमाउंट ऑफ एयर that can be expired after normal inspiration। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद टोटल अमाउंट कितना एक्सपायर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी विल बी इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है ना। तो सिंपल है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कैपेसिटी जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। तो नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको आप एफआरसी बोलते हो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जिसको आप एफआरसी बोलते हो, ठीक है ना। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और एफआरसी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, इट मींस द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, ओके, बट व्हेन द पर्सन इज एट मीन पोजीशन, यानी जब उसने एक्सपायर किया होता है, नॉर्मली एक्सपायर किया होता है, ठीक है ना। तो मान लो ये वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ये बंदा नॉर्मली इंस्पिरेशन करता है और नॉर्मली एक्सपिरेशन करता है।
अब जब इसने नॉर्मली एक्सप्रेशन की, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, अब इसकी लंग्स में क्या बचा? अब इसकी लंग्स में एक तो बचा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो ये एक्सपायर कर सकता था अगर ये फोर्स लगाता, और बचा रेजिडुअल वॉल्यूम, जो ये टोटली एक्सपायर नहीं कर पाएगा। अब ये जो इन दो क्वांटिटीज का सम है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, ठीक है ना, बट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल। तो अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन करता तब बचता रेजिडुअल वॉल्यूम, बट नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना बचता? ERV प्लस RV, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। सो इट इज टोटल अमाउंट ऑफ एयर, total amount of air remaining in lungs, remaining in lungs, total amount of air remaining in lungs after normal expiration, after normal expiration, after normal expiration, ठीक है ना। सो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना लंग्स के अंदर बचता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसके बराबर होगा? एक तो ERV प्लस RV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी को, जिसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी या VC, वाइटल कैपेसिटी। तो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। वाइटल कैपेसिटी इज योर टोटल इनस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी पोटेंशियल, ठीक है ना, इट्स टोटल। तो कैसे हम मेजर करते हैं वाइटल कैपेसिटी को? वाइटल कैपेसिटी एंड टू एंड जाता है, फ्रॉम द एक्सट्रीम ऑफ इंस्पिरेशन टू फ्रॉम टू द एक्सट्रीम ऑफ एक्सपायरेशन। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। सपोज ये पर्सन एक इंस्पायर किया, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर किया, अब नॉर्मल एक्सपायर किया टाइडल वॉल्यूम, इसके बाद इसने और जोर लगा के इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपायर किया। अब देखो यहाँ पे इसने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, ये यहाँ तक नॉर्मल इंस्पिरेशन थी, नॉर्मल इंस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम तक। अब यहां से लेकर यहां तक इसने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। अगर मैं इसको फोर्सफुल इंस्पिरेशन कंप्लीट करने के बाद बोलूं कि कंप्लीट एक्सप्रेशन करो, यानी बराबर फोर्सफुल एक्सप्रेशन तक, तो ये क्या करेगा? तो सबसे पहले ये अपना ये इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम बराबर एक्सपायर करेगा, फिर उसके बाद ये अपना टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करेगा, फिर उसके बाद अपना एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपायर करेगा। तो यहां से लेकर यहां तक इसने क्या एक्सपायर किया? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां से लेकर यहां तक इसने क्या एक्सपायर किया? टाइडल वॉल्यूम। और यहां से लेकर यहां तक इसने क्या एक्सपायर किया? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो इन तीनों का सम बन जाता है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। सो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। सो इट हैज टू डेफिनेशंस, ये एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी। सो यू कैन रीड दैट आउट फ्रॉम योर नोटबुक, ठीक है, दैट आई विल कीप असाइनमेंट फॉर यू। बट एग्जाम में एक डेफिनेशन काम कर जाएगी, ठीक है ना, लेकिन दो डेफिनेशन है, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल लेट मी डिस्कस दिस वन डेफिनेशन। सो व्हाट इज इट? सो इट इज टोटल अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। यहां से आप बोल रहे हो इसको टोटल एक्सपायर करो, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी expired, लेकिन आफ्टर व्हाट? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। आई होप यू गॉट इट। एंड वाइटल कैपेसिटी किस किस के बराबर होगा? एक तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन की होगी तो IRV निकालेगा पहले, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम निकलेगा बाहर, और उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकलेगा बाहर, ठीक है ना। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, सेकंड डेफिनेशन भी है, ठीक है ना, जिसमें आप डाउन टू अप जाओगे, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। तो बोल दिया मैंने, आप लोग कॉपी से देख सकते हो, ठीक है ना। सेकंड डेफिनेशन भी इसकी है, ठीक है ना, विच विल बी अपोजिट टू दिस डेफिनेशन। सो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। समटाइम्स पीपल, आई हैव सेड इन द क्लास कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थडे कैपेसिटी, ठीक है, बर्थडे दैट यू यूज ऑन योर बर्थडे, ठीक है। सपोज somebody has birthday and there are a lot of candles on the cake and he has to उसको सभी कैंडल्स बुझा देने हैं, ठीक है। सो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू एक्सपायर एज मच एयर एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो उसके लिए वो क्या करेगा? पहले वो फुल इंस्पिरेशन करेगा एंड उसके बाद ही विल गो ऑल आउट, ठीक है ना। सारा का सारा एयर जितना भी लंग्स के अंदर है वो उसको ट्राई करेगा कि वो बाहर चला जाए, जिसमें IRV होगा, जिसमें TV होगा और जिसमें ERV होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। एंड अब अगर हम सारी वॉल्यूम्स, अब अगर इस वाइटल कैपेसिटी को ये छोटा सा क्वांटिटी जो रह गया वो भी ऐड कर दे, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वो बन जाता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो लास्ट कैपेसिटी है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है ना, टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, इट इज सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, ठीक है ना, इट इज सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, ठीक है ना। यानी कि
IRV, TV, ERV और उसको ऐड कर दो RV, ठीक है ना, यानी कि इन तीनों को हम वाइटल कैपेसिटी भी लिख सकते हो प्लस RV, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट 6 लीटर होता है ये टोटल लंग कैपेसिटी हमारा, ठीक है ना, एवरेज इंसान में। तो दैट्स ऑल अबाउट द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। सो लेट्स गो टू, दिस वाज द मेजर क्वेश्चन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके को यहाँ पे रखा गया है। सो ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सो दिस इज डायग्रामेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, ये आपकी डायग्राम बनाने की स्किल को टेस्ट करेगा और साथ साथ टेस्ट करेगा कि आपको पता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन किन लेयर्स का बना है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से मतलब दो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स, एक तो अल्वियोलाई के और ब्लड के दरमियान जो मेम्ब्रेन है, और दूसरा टिश्यूज और ब्लड के दरमियान जो है। लेकिन मैंने आई से ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो मोस्टली ये पूछा जाता है अल्वियोलाई के रिलेटेड, ठीक है ना। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में अल्वियोलाई इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट मी ड्रॉ दिस अल्वियोलस। तो फ्लास्क शेप्ड अल्वियोलस, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन्ड एक स्ट्रक्चर है जिसको हम अल्वियोलस बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ अल्वियोलाई में ईयर है, ठीक है ना, देयर इज ईयर इन दिस अल्वियोलाई, ठीक है ना। तो अब इस ईयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को जाना है टिश्यूज की तरफ या ब्लड की तरफ। अब एक ब्लड वेसल भी आ रही है टुवर्ड्स दिस, एक ब्लड वेसल भी आ रही है, ठीक है ना। देयर इज अ ब्लड वेसल व्हिच इज आल्सो कमिंग टुवर्ड्स द अल्वियोलाई। ब्लड वेसल, कौन सी ब्लड वेसल, कैपिलरी, ठीक है ना। तो ऐसे मैं कैपिलरी को बनाता हूँ, ठीक है, कैपिलरी। लेट मी टेल यू कि ये कैपिलरी जो है इसमें ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इनके बीच में एक कनेक्टेड टिश्यू का मेम्ब्रेन आता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इनके बीच में एक कनेक्टेड टिश्यू का मेम्ब्रेन आता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बन गई आपकी लेबल डायग्राम ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो अब आप खुद ही देख लो क्या क्या चीजें इसमें, ठीक है ना। तो जब अगर मान लो सपोज इस ऑक्सीजन को क्रॉस करना है यहाँ की तरफ, ठीक है ना, तो अगर इसको यहाँ की तरफ क्रॉस करना है तो सबसे पहले इसको फेस करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको फेस करना पड़ेगा ये एपिथेलियम, ठीक है ना, जो अल्वियोलाई का है, तो जिसको आप अल्वियोलर एपिथेलियम बोलते हो, ठीक है, दैट यू कॉल एज अल्वियोलर एपिथेलियम। उसके बाद इसको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन फेस करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ये कैपिलरी की सेल्स जिनको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं, वो फेस करनी पड़ेगी। तो टोटल में 3 लेयर्स है। तो व्हाट इज दिस लेयर, दिस लेयर इज अल्वियोलर एपिथेलियम, अल्वियोलर एपिथेलियम, ठीक है। व्हाट इज दिस लेयर, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दिस लेयर, दिस इज कैपिलरी एंडोथेलियम, दिस इज कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है ना। तो ये 3 लेयर्स है। अगर ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगा तो उसको अपोजिट सीक्वेंस में इन लेयर्स को फेस करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इजी फॉर यू, ओके। सो दिस वाज द डायग्राम ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आपको, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सो वी हैव आफ्टर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, you might have read it, there is transport of gases inside the blood and we have to transport 2 gases. एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है लंग्स से टिश्यूज की तरफ, ठीक है, ब्लड करेगा ऑब्वियसली, एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से वापस लंग्स की तरफ लाना है ताकि वो बाहर निकल जाए, ठीक है ना, अगेन वो ब्लड करेगा। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिस्कस करने को बोला है, लेकिन जब आप पढ़ोगे आप कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से पढ़ोगे। अब देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एज यू माइट हैव read already, oxygen is transported in 2 main ways, ठीक है ना। O2 is transported in 2 main ways, in 2 ways, ठीक है ना। एक तो dissolved form, ठीक है ना, माइनर है 3%, और दूसरा ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म जो कि 97% है। तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, इसी ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म को, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूं, आपका जो हेमोग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है और ये एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है, यानी जिसके 4 यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना।
ना हर कोई यूनिट जो है ना उसमें हेम होता है, ग्लोबिन होता है, प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन प्रोटीन पार्ट, और हेम के अंदर एक आयरन होता है, ठीक है ना। तो लेट मी राइट दिस थिंग अबाउट हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो है, एचबी जो है, तो ये एक टेट्रामर है, इट्स ए टेट्रामेरिक प्रोटीन, टेट्रामेरिक प्रोटीन, ठीक है ना। टेट्रामेरिक प्रोटीन मतलब 4 सब यूनिट्स है, ठीक है ना। और हर एक सब यूनिट जो है, ईच सब यूनिट जो है उसके पास 2 यूनिट्स है, हेम और ग्लोबिन, हेम और ग्लोबिन, ठीक है ना। और हर किसी हेम के अंदर एक आयरन है फेरस स्टेट में, Fe2 पॉजिटिव स्टेट में, ठीक है ना। तो ईच सब यूनिट हैज हेम एंड ग्लोबिन, 2 पार्ट्स, हेम एंड ग्लोबिन। हेम है नॉन प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन है प्रोटीन पार्ट। और हर किसी हेम के अंदर एक आयरन एटम है Fe2 पॉजिटिव स्टेट में, ठीक है ना। नाउ जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम है ना, वो यही Fe2 पॉजिटिव करता है, यानी आयरन करता है। और एक आयरन एक Fe2 पॉजिटिव एक O2 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, एक O2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है ना, या एक O2 मॉलिक्यूल को अटैच करता है। अब हेमोग्लोबिन टेट्रामर है, तो उसमें ऐसे 4 आयरन होंगे, 4 आयरन एटम्स होंगे। तो इसका मतलब एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पूरा का पूरा टेट्रामर 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। लेट मी राइट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ईच Fe2 पॉजिटिव इन हेम, ठीक है ना, कैरीज 1 O2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो therefore each hemoglobin molecule carries how much 4 O2 molecules, ठीक है ना। अब दिस इज मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूल, इसको अगर ग्राम वर्सेस ml में कन्वर्ट करें, this also means that 1 gram hemoglobin carries 1.34 ml O2, ठीक है ना। इसका मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 कैरी करता है, ठीक है ना। अब हमारी ब्लड में एवरेज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। तो वो 15 ग्राम कितना कैरी कर सकता है अगर सारा का सारा ऑक्सीजन को बाइंड कर दे, तो 15 इंटू 1.34। तो आवर ब्लड कंटेन्स, कितना होता है हमारे ब्लड में, कंटेन्स 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी हमारी ब्लड की फिर क्या है, वो क्या होगी मैक्सिमम, आप ही बता दो। तो 15 अगर पर डेसीलीटर है, तो 15 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1.34 से, तो वहां आ जाता है आपका 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। यानी कि अगर ये सारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच हो जाए तो 15 ग्राम, ये 20.1 ml ऑक्सीजन आपका कैरी हो सकता है। लेकिन हमारा जो ब्लड है हमेशा, हमारा जो हेमोग्लोबिन है ब्लड में हमेशा 100% सैचुरेटेड नहीं रहता। ये मतलब हमने यहाँ पे लिया 100% सैचुरेशन, यानी सारा का सारा आपका हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंधा रहेगा, ठीक है ना। बट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कंट्रोल करता है इस अटैचमेंट को, ठीक है ना। तो जो हमारा नॉर्मल आर्टरीज का पार्शियल प्रेशर है वो 95 mmHg होता है, ठीक है ना। उस पे सिर्फ 97% सैचुरेशन होती है, ठीक है ना। और जब हम ऑक्सीजन मेजर करते हैं, ठीक है ना, फिर आर्टरीज में वो 20.1 नहीं होता, वो होता है 19.4, ठीक है ना, 19.4। अब ये बाकी डिफरेंस का है, बाकी डिफरेंस हेमोग्लोबिन फ्री है, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है। तो ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, लेट मी टेल यू दिस इज मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। बट हमारा ब्लड 100% सैचुरेटेड हमेशा नहीं रहता, ठीक है ना। तो लेट मी राइट दिस, ठीक है ना। आर्टरीज हैव about 97% saturation of oxygen, ठीक है ना। and that means O2 carried, कितना ऑक्सीजन कैरी कर पाते होंगे वो, ऑब्वियसली 97% ऑफ दिस मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 20.1, जो आपका आता है 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो इसका मतलब आर्टेरियल ब्लड में आपको 20.1 पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा, आपको वहां पे 19.4 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सैचुरेशन सिर्फ 97% होती है, ठीक है ना। अब जब यही ब्लड जाता है टिश्यूज के पास, ठीक है, मान लो अब यहाँ मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, तो यहाँ से आर्टरीज का ब्लड आ रहा है, ये टिश्यूज है, ठीक है ना, ये टिश्यूज है, ठीक है ना। तो आर्टरीज में कितना आ रहा है 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है ना, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे कैपिलरीज बनेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है ना।
फिर यहाँ से वेनस ब्लड आएगा, ठीक है ना। तो जब हम वेनस ब्लड की सैचुरेशन चेक करते हैं, यहाँ पे यही 70, 75, 72, 73% के दरमियान होती है, और जब वो 72% का हम कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन निकालते हैं, वो आता है ऑलमोस्ट 14.4 ml ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो एट, या ये मैंने आर्टरीज का मेंशन किया था, यहां पे मैं वेन्स का बोलूंगा, इन वेन्स द सैचुरेशन इज 72 to 73%, इसके दरमियान होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 72 to 73%, ठीक है ना। देयरफॉर O2 कैरिड, O2 कैरिड कितना आएगा, वो आप यही 72 पॉइंट समथिंग होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 20.1 से, तो दैट कम्स आउट टू बी 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। अब देखो यहां से आया 19.4 एंड कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हुआ है, एंड यहाँ पे आपने मेजर किया, यहाँ पे बचा है 14.4, तो इसका मतलब कितना ऑक्सीजन यहाँ पे गया है, ऑब्वियसली 19.4 माइनस 14.4 जो कि है 5 ml ऑक्सीजन, ठीक है ना, बाय ईच डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है ना, बाय ईच डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें यहाँ पे समझ आता है। लेट मी रिवाइज ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला आपका हर एक आयरन एटम जो है, आयरन फेरस आयरन जो है, वो आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, और आपके हीमोग्लोबिन में ऐसे 4 आयरन एटम्स होंगे तो 4 O2 मॉलिक्यूल्स कैरी होंगे। अब इसी का मतलब हम निकाल सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ठीक है ना। अब हमारे ब्लड की में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना वो कैरी कर पाएगा, 15 into 1.34, 20.1। अब यहाँ पे आर्टरीज में जो ऑक्सीजन की का पार्शियल प्रेशर होता है, उस पे सिर्फ 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो पाता है, तो वो कैरी कितना कर पाएगा फिर, 97% ऑफ 20.1, यानी 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अब ये 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड गया टिश्यूज की तरफ, ठीक है ना, और टिश्यूज से वहां पे जब कैपिलरीज बनती है, फिर जब वेन्स बनती है, वेन्स में बचा होता है 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है ना। वो हम सैचुरेशन से ही अगेन निकालते हैं, हम वेन्स में सैचुरेशन मेजर करते हैं, 72 73 के अराउंड आती है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 14.4 ml ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड मिल जाता है। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस देखते हैं 5 ml का डिफरेंस है, और वही 5 ml एक डिसीलीटर ऑफ ब्लड ने, 100 ml ऑफ ब्लड ने दे दिया होता है किसको, टिश्यूज को। तो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ईच 100 ml, जिसको आप डिसीलीटर भी बोलते हो, ऑफ ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यूज नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मल। अब देखो इतना हमने डिस्कस किया अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, ब्रीफली डिस्कस किया, ज्यादा मैंने इसको खींचा नहीं। इसके बाद हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो पढ़ते हैं, लेकिन दैट वोंट बी, यू वोंट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन दैट इफ इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपकी काफी होगी बोर्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो डिसॉल्व्ड फॉर्म है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म है, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म को मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में, जितना आपको एग्जाम में जरूरत है उतना एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, वो आप वहां पे इतना बोर्ड में लिख सकते हो, ठीक है ना। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है ना, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। ब्लड ही वो फ्लूइड है जो हमारी वेसल्स में फ्लो करता रहता है और वैरायटी ऑफ फंक्शंस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, हार्मोनल ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन में एंड सो ऑन। नाउ ये ब्लड जो है एक्चुअली है क्या, ब्लड एक connective tissue है, ठीक है ना, इट्स ए connective tissue, fluid type of connective tissue, and often we call it fluid mobile connective tissue, ठीक है ना, in very short crisp way we call it fluid mobile connective tissue। तो है क्या blood, so blood is a fluid mobile connective tissue, ठीक है ना। अब कुछ बेसिक चीजें, कलर ब्लड का हर एक को पता होगा, ह्यूमन ब्लड का कलर रेड है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, और ह्यूमंस में वॉल्यूम ऑलमोस्ट 5 to 5.5 लीटर्स होते हैं ब्लड के हमारे पास, ठीक है ना, 5 to 5.5 लीटर्स होते हैं हमारे पास ब्लड के, ठीक है।
अब पीएच ब्लड का ऑलमोस्ट हमारा रहता है 7.4 यानी स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है जो आप ब्लड के मेंशन करोगे, ठीक है ना। कलर रेड है, वॉल्यूम 5 to 5.5 है, पीएच 7.4 है, ठीक है, 7.4। और अगर आपको एम्ब्रियोनिक ओरिजिन पूछा जाए, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, तो हमारे 3 जर्म लेयर्स होते, तो ब्लड ऑब्वियसली कनेक्टेड टिश्यू है, तो ये मेसोडर्म से अराइज होगा, मेसोडर्म से अराइज होगा, ठीक है ना। नाउ ब्लड के 2 हिस्से हैं, ब्लड के बेसिक 2 हिस्से, एक तो इसकी सेल्स और इसका फ्लूइड। फ्लूइड को हम प्लाज्मा बोलते हैं और सेल्स हमारी 3 तरह की, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स है, तो ब्लड के आपके 2 कंपोनेंट्स है, तो ब्लड के आपके 2 कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। एक तो प्लाज्मा जो कि फ्लूइड कंपोनेंट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि सेलुलर कंपोनेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो कि सेलुलर कंपोनेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट्स, दैट इज सेल्स, ठीक है ना, दैट इज सेल्स, दैट इज सेल्स। प्लाज्मा इसका 55% बनाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसके 45, यानी ब्लड का 45% वॉल्यूम सेल्स है और 55% वॉल्यूम प्लाज्मा है, ठीक है ना। अब चलो इस प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा जो है ना, जो 55% बनाता है ब्लड का, ठीक है ना, फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का, इस प्लाज्मा में मैक्सिमम चीज वाटर है और फिर बाकी जो बची है वो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है। तो प्लाज्मा जो है फ्लूइड पोर्शन जो है, इसके 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स हम निकाल सकते हैं। एक तो मेनली वाटर है और दूसरा डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ठीक है ना। और वाटर इसका 90 to 92% बनाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम इसका वाटर है। अब डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस में क्या है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस में आपको मिलते हैं प्रोटीन्स, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस में आपको मिलते हैं गैसेस, आपको मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, आपको मिलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, आपको मिलते हैं हार्मोन्स, ठीक है ना, आपको मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सो ऑन। अब बोलोगे सर प्रोटीन्स बोल रहे हैं, अब तो कौन कौन से प्रोटीन्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि मेन प्रोटीन जो है दैट्स एल्ब्यूमिन, दैट्स एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, मेन प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। और एक प्रोटीन है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन। इनकी डिटेल्स में भी ज्यादा नहीं दूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपको शॉर्ट में क्वेश्चन लिखना है, बाकी डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएगी या आपके चैप्टर में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा और एक प्रोटीन है दैट इज ग्लोब्यूलिन, जो डिफेंस के तौर पे काम करता है, एंटीबॉडीज बनाता है हमारी, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये आपके 3 मेन प्रोटीन्स। आप गैसेस ढूंढोगे तो गैसेस में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 2 मेन गैसेस है हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस। न्यूट्रिएंट्स में आपको ग्लूकोज मिलेगा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। वेस्ट में आपको यूरिया मिलेगा, प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट। हार्मोन्स तो बहुत सारे हैं, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या ही बात करें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो मन में आए लिख दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मेनली यही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एटसेट्रा, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द प्लाज्मा, ठीक है, एंड इट्स 2 पार्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये डिस्कशन, ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या जिनको हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जिनको हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है ना, बहुत ही प्रिसाइज वे में हमें इनको डिस्कस करना है, ज्यादा मैं यहाँ खींचूंगा नहीं इसको, ठीक है ना। तो इसमें आपकी 3 तरह की सेल्स है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। बहुत लंबा जाएगा ये डिस्कशन, ठीक है, अगर मैं इसको ज्यादा खींचूंगा तो आपको उतना लिखना नहीं होगा वहां पे, इसलिए थोड़ा प्रिसाइज रहता है, ठीक है ना। चलो आरबीसी की बात करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं आपस में, आरबीसी के बारे में हमें क्या पता है। देखो रेड ब्लड सेल, रेड कलर है इसका, रेड कलर किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। अब आरबीसी का साइज ऑलमोस्ट डायमीटर अबाउट 7 माइक्रॉन्स होता है, ठीक है, 7 माइक्रॉन्स लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और शेप इसकी बाइकनकेव होती है, ऐसे बाइकनकेव और राउंड, ठीक है ना। एक्सेप्शंस है, नॉन मेमलियन आरबीसी अपोजिट होते हैं, लेकिन उसका भी मेंशन नहीं करेंगे। आरबीसी काउंट आपका 5 to 5.5 मिलियन होता है, सबसे ज्यादा होती है प्रेजेंट आरबीसी, ठीक है ना। बेसिक फीचर ज्यादा मैं मेंशन नहीं करूंगा, बस उतना ही जितना बोर्ड में लिख पाओगे अच्छे से, ठीक है। और आरबीसी बनती बोन मैरो में है, लेकिन फीटस में यॉर्क सैक में बनती है, वो छोड़ो, अभी बोन मैरो में बनती है एडल्ट्स में। और आरबीसीज जो है, आरबीसीज का लाइफ स्पान होता है 120 डेज, और यूजुअली ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आरबीसीज कलर कैसा है इनका, रेड, ठीक है ना। साइज कितना है इनका, 7 माइक्रोन डायमीटर। शेप कैसी है इनकी, शाबाश, बाइकनकेव एंड राउंड, यानी ऐसे बाइकनकेव, ठीक है ना। और
मार्जिन राउंड होता है, ठीक है ना। तो नंबर कितना होता है इनका 5 to 5.5 मिलियन, मिलियन में होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसके अलावा फॉर्मेशन कहाँ होती है इनकी, बोन मैरो, बोन मैरो में। एंड लाइफ स्पान कितना होता है इसका 120 डेज, 120 डेज, ठीक है ना। तो दैट्स अबाउट द आरबीसीज, ठीक है। RBC basic features. I can mention a lot of things about RBCs, but I want you to write only these things in your exam because you won't be required to write much in your exam. Now WBCs, white blood cells. अच्छा, RBCs को erythrocytes भी बोलते हैं और WBCs को leukocytes भी बोलते हैं, leukocytes. अब इसी पैटर्न में मैं बोलूँ WBCs आपके कलरलेस होते हैं, कलर एब्सेंट है, अब कभी कभी व्हाइट भी बोलते हो, ठीक है। नाउ साइज आपका बड़ा होता है यहाँ पे आरबीसीज का 12 to 20 माइक्रॉन्स, और शेप कुछ नहीं होती, शेप इरेगुलर होती है, ठीक है ना, जिसको हम अमीबॉइड भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अमीबॉइड, अमीबा की तरह या इरेगुलर भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोल दूं यहाँ पे आरबीसीज मैच्योर आरबीसीज में कोई न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है ना। मैच्योर आरबीसीज आर डी न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैच्योर आरबीसीज आर डी न्यूक्लिएटेड, आर डी न्यूक्लिएटेड, यानी उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना, डी न्यूक्लिएटेड। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आप WBCs हैव न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब इनका नंबर अगर आप देखें WBCs का तो 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब, के मतलब 1000, ठीक है ना। एंड फॉर्मेशन इनका भी बोन मैरो में है, ठीक है ना। फॉर्मेशन यूजुअली एडल्ट्स में हर किसी सेल की बोन मैरो में ही होती है। एंड लाइफ स्पान एवरेज में 2 वीक्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं WBCs के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। देयर आर टाइप्स ऑफ WBCs जो आपने पढ़ा होगा। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते, एंड ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपके मोनोसाइट्स आते हैं जिनको आप यू विल रिवाइज देम, ठीक है। फिलहाल अगर क्वेश्चन आया ब्लड तो उसमें आप इस तरह से शॉर्ट में मेंशन करोगे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। एंड ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो वहां पे आपके पास इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है ना। तो इन अलग अलग WBCs का अलग अलग फंक्शन है विच यू विल स्टडी ऑन योर नोटबुक्स, ठीक है। फिलहाल विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड्स दिस मच इंफॉर्मेशन विल बी एनफ, ओके। नाउ लेट्स गो टू थर्ड टाइप ऑफ सेल, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखो प्लेटलेट्स का कलर भी अगेन एब्सेंट है, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए कलर नहीं है। साइज इनका बहुत कम होता है 2 to 3 माइक्रॉन्स, और शेप इनकी डिस्क लाइक होती है, दे आर डिस्क शेप्ड, ठीक है ना, डिस्क लाइक फ्रेगमेंट्स, ओके। एंड दे आल्सो लैक न्यूक्लियस, तो दे आर आल्सो डिन्यूक्लिएटेड लाइक आरबीसीज। तो आरबीसीज की तरह ये भी डिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर इनका नंबर देखें तो WBC से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना, 1.5 to 3.5 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। एंड अगर फॉर्मेशन देखिए तो फॉर्मेशन अगेन इनकी भी बोन मैरो में होती है, तो मेगाकैरियोसाइट वहां पे लार्ज सेल्स हो जिनकी स्प्लिटिंग से ये बनते हैं। और लाइफ स्पान अगर हम प्लेटलेट्स का देखें तो इनका लाइफ स्पान होता है 1 वीक, ठीक है ना। I'm trying to do these things rapidly because these are very easy things. I do not want to spend much time on these things, ठीक है ना। तो इतना आप बोर्ड में लिख के अपनी नैया को पार लगा सकते हो, ठीक है। तो that's the brief and rapid revision of the blood, ठीक है ना, which can be asked as a question in your exam, ठीक है। तो ये हमने ब्लड को डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट, जो यहाँ पे मैंने आपको दिया है, ये अगेन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट वॉल, तो आपको हार्ट वॉल का हिस्टोलॉजी डिस्क्राइब करना, हार्ट वॉल का आपको एक्चुअली शॉर्ट में क्रॉस सेक्शन लेना है, ठीक है ना, और आपको दिखाने हैं कि हार्ट वॉल में कितने लेयर्स है, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट वॉल, ठीक है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर यूजुअली नहीं पूछा जाएगा अगर ब्लड पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर ब्लड पूछा गया तो फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा हार्ट के स्ट्रक्चर में, जो मोस्ट प्रोबेबली होगा यही हिस्टोलॉजी ऑफ द हार्ट वॉल। अब जब हम देखो क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना हार्ट का, तो हमें यूजुअली 3 लेयर्स मिलते हैं, ठीक है ना। लेट मी ड्रॉ दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है ना। तो देखो
आप मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया हार्ट का, ऐसे छोटा सा स्लाइस काटा है। अब मैं देख रहा हूँ हार्ट के वॉल में कितने लेयर्स है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ हार्ट के वॉल में कितने लेयर्स है, ठीक है। भाई आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन वंस आई विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग, ये हार्ट का अंदर वाला साइड और वो हार्ट का बाहर वाला साइड, ठीक है ना। अंदर से बाहर में देख रहा हूँ कितनी लेयर्स आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो देखो दिस इज द इंटरनल साइड, दिस इज द एक्सटर्नल साइड, ठीक है। दिस इज इंटरनल साइड, दिस इज एक्सटर्नल साइड, एक्सटर्नल साइड। तो सबसे अंदर वाला लेयर जो हार्ट का हमें मिलता है ना, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, ठीक है ना, एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम क्या है? इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। और ये एंडोकार्डियम बना होता है स्क्वैमस सेल्स का। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस इप्थीलियम, ये स्क्वैमस इप्थीलियम का बना होता है। तो हार्ट के अंदर से एक स्क्वैमस इप्थीलियम है जिसको आप एंडोकार्डियम बोलते हो, जो इसका इनर मोस्ट लेयर बनता है, ठीक है ना। अब बीच में जो ये लेयर है आपका, बीच में जो मसल से बना हुआ है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड एज मायोकार्डियम। यहाँ पे आपका जो बीच में लेयर है दैट्स कॉल्ड मायोकार्डियम, ये थिकेस्ट लेयर है। तो मायोकार्डियम मिडल लेयर है, थिकेस्ट लेयर है, और किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है। अब इसके बाद जो बाहर वाला लेयर आता है, ये इसको हम बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे पेरिकार्डियम के दो सब लेयर्स है, एक तो ये वाला और ये वाला। इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। तो इसीलिए मैंने इसको यहां पे इस तरीके से डिनोट किया, ठीक है। तो पेरिकार्डियम इज हैविंग टू लेयर्स, दिस वन इज विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम कभी कभी इपिकार्डियम भी बोलते हैं, एंड दिस वन इज पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। अब इनके बीच में ये स्पेस है, दिस स्पेस, ठीक है ना, ये स्पेस, ये स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस। एंड दिस पेरिकार्डियल स्पेस कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड which absorb shocks that can be that the heart can receive from sometimes. It allows frictionless movements during the cardiac cycle and whatnot. Okay, so this is the basic thing. You can translate this on your, you can write sum up this on your notebook in very discrete way, ठीक है। So you will write down there are three layers: outer pericardium, middle myocardium and inner endocardium. Okay, let me highlight this out. So this is endocardium, this is myocardium middle layer, and this outer pericardium, ठीक है। And pericardium is having two layers: visceral pericardium and parietal pericardium, and in between there is pericardial space. Okay, all of this is so simple, you will write this easily on your board examination with this diagram. Okay, now let's go to another question. The question is asking you to explain various phases of cardiac cycle. Now let me briefly describe what is cardiac cycle. Cardiac cycle is the sequence of events that occurs in one heartbeat. Okay, one heartbeat. What are the events that occur in one heartbeat that constitute the cardiac cycle? So cardiac cycle, what is cardiac cycle? Cardiac cycle is sequence of events that occur in one heartbeat. Now everyone knows there are 72 beats per minute. Average में 72 beats होती है per minute, यानी कि 60 seconds. Therefore, one beat को कितना टाइम लगता है? एक बीट कितने टाइम में होती होगी? 60 seconds divided by 72 beats, ठीक है ना, यानी कि ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड। और इस 0.8 सेकेंड को हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। दिस इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल।
नाउ आई वांट टू बी प्रिसाइज, इस कार्डियक साइकिल में क्या इवेंट्स होते हैं? इस कार्डियक साइकिल में या तो कोई चैम्बर कंट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोली या सिस्टोल, या तो कोई चैम्बर रिलैक्स करता है, जिसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है ना। सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर इन वन हार्ट बीट, और देयर आर 72 बीट्स इन पर मिनट, यानी 60 सेकंड्स, देयरफॉर वन बीट विल ऑकर इन 60/72 सेकंड्स, यानी कि 0.8 सेकंड्स, ओके, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। तो अब कार्डियक साइकिल में दो मेन इवेंट्स होते हैं, देयर आर टू मेन इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल, या टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो जब भी कोई चैम्बर कंट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब भी कोई चैम्बर रिलैक्स करता है उसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है ना। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस कार्डियक साइकिल वेरी वेल, एक्चुअली मुझे बहुत सारा डिस्कस करना है, नोडल सिस्टम ऑफ द हार्ट डिस्कस करना है, बट फिलहाल ये क्योंकि बोर्ड रिवीजन चल रहा है तो आई विल टेक इट कि आप लोगों ने वो सब रिवाइज किया होगा। सो एवरी वन ऑफ यू नोज दैट कि ये फॉर एग्जांपल हार्ट है, इसका ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। आप सब जानते होंगे कि राइट एट्रियम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो एसए नोड, और एसए नोड नर्व इंपल्स सप्लाई करता है हार्ट को, जो पहले एट्रिया के पास जाती है, फिर वही इंपल्स एवी नोड के थ्रू, बंडल ब्रांचेस के थ्रू वेंट्रिकल्स को मिलती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर एसए नोड पहले एट्रिया को दे रहा है सिग्नल, तो सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, फिर उस दौरान ये वेंट्रिकल्स चुपचाप करके होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद एवी नोड के थ्रू सिग्नल पहुंच जाती है वेंट्रिकल्स को, तो फिर वेंट्रिकल्स सिस्टोल करते हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं, एंड उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, एट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्सेशन में होती है, तो फिर हो जाता है सो कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है ना। तो सीक्वेंशियली अगर हम देखें, सीक्वेंशियली देयर आर 3 इवेंट्स सीक्वेंशियली। तो पहला इवेंट क्या होता है? पहला इवेंट होता है एट्रियल सिस्टोल, जिसमें आपके एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा इवेंट क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, एंड उसके बाद होता है ज्वाइंट डायस्टोल, जिसमें आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और आज आपके एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल एज ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है ना। तो ब्रीफली डिस्कस करना है, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो मैं आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन के हिसाब से ही बता दूं, अगर ये कार्डियक साइकिल है, इसका ड्यूरेशन टोटल है 0.8 सेकंड, अगर ये 0 मान लो है तो ऑलमोस्ट 0.1 सेकंड्स के लिए होता है एट्रियल सिस्टोल, फिर उसके बाद 0.3 सेकंड्स के लिए होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना। उसके बाद दोनों रिलैक्सेशन में आते हैं और ये यहाँ पे होता है ज्वाइंट डायस्टोल। तो ये 0.0 भी है, 0.8 भी है। अब 0.1 सेकंड्स के लिए होता है एट्रियल सिस्टोल, इसको 0.3 जोड़ दो, 0.4 बन जाएगा ये, तो 0.3 जो डिफरेंस है इसके लिए होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर दोनों रिलैक्स होते हैं, इसके लिए होता है ज्वाइंट डायस्टोल। मैं इस डायग्राम के पास बाद में वापस आऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल से। हम देखते हैं कि जब एसए नोड एट्रिया को सिग्नल देता है तो क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, और एट्रियल सिस्टोल के दौरान क्या होता है। तो पहला इवेंट देखते हैं, पहला इवेंट है एट्रियल सिस्टोल। द फर्स्ट इवेंट इज एट्रियल सिस्टोल, द फर्स्ट इवेंट इज एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल, ठीक है ना। तो क्या होता है एट्रियल सिस्टोल के वक्त? एसए नोड जो है वो एट्रिया को सिग्नल देता है और एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं। अब जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, ऐसे यूं कंट्रैक्ट करेंगे, ऐसे मान लो ये कंट्रैक्टेड एट्रिया, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ब्लड एट्रिया में था वो चला जाएगा किस में? वेंट्रिकल्स में। ऐसे देखो यहाँ पे एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया है और एट्रिया के कंट्रैक्ट होने से ब्लड एवी वाल्व्स के थ्रू, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इनके थ्रू चला जाएगा वेंट्रिकल्स में। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलूं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमें लगता है एट्रियल कंट्रैक्शन से बहुत सारा ब्लड जाएगा, लेकिन असल में एट्रियल कंट्रैक्शन से सिर्फ वेंट्रिकल्स में एक्स्ट्रा 30% ब्लड जाता है, यानी सिर्फ 30% एक्स्ट्रा फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल ऑलरेडी भरा होता है ब्लड से इस टाइम पे, जिस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है ना। वो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, मे भी आपने पढ़ा भी हो, ठीक है ना। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? एट्रिया कंट्रैक्ट एंड पुश ब्लड into ventricles and push blood into ventricles via AV valves, ठीक है ना।
तो ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन होता है भाई 0.1 सेकेंड्स। एंड ये बात याद रख लो आप, इट कॉजेज ओनली 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, इट कॉजेज ओनली 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे वेंट्रिकल्स में सिर्फ 30% फिलिंग होती है, ठीक है, इससे वेंट्रिकल्स में सिर्फ 30% फिलिंग होती है, ठीक है ना। सो दिस इज एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में एवी वॉल्व्स के थ्रू, ड्यूरेशन होगा 0.1 सेकेंड्स और सिर्फ 30% फिलिंग होगी क्योंकि वेंट्रिकल ऑलरेडी भरा होगा। अभी देखो, अभी हम जाएंगे आगे और ये चीजें हमें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब एट्रियल सिस्टोल जब हुआ, एट्रिया जब कंट्रैक्ट किया, कंप्लीशन जब हुई, उसके बाद क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है ना। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, और एट्रिया किस किस में आ जाते हैं, एट्रिया आ जाते हैं रिलैक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एट्रिया आ जाते हैं रिलैक्सेशन में और वेंट्रिकल बिगिन करता है अपनी कंट्रैक्शन। वेंट्रिकल बिगिन करता है अपनी कंट्रैक्शन, तो एट्रिया आ जाते हैं रिलैक्सेशन में, ठीक है ना, एट्रिया आ जाते हैं रिलैक्सेशन में, ठीक है ना। अब देखो, जब वेंट्रिकल बिगिन करता है कंट्रैक्शन, अब वेंट्रिकल बिगिन जब करता है ना कंट्रैक्शन, इनिशियली जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन बिगिन करता है तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से ये एवी वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से एवी वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। तो वेंट्रिकल सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, वेंट्रिकुलर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो गरज क्या होता है वेंट्रिकल्स का असल में, द वेंट्रिकल्स वांट टू पुश द ब्लड इनटू एओर्टा, वेंट्रिकल्स को ब्लड करता है पंप इनटू वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट टू पुश ब्लड इनटू एओर्टा, ब्लड इनटू एओर्टा, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन कितना रहता है इस वेंट्रिकल सिस्टोल का, इसका ड्यूरेशन रहता है 0.3 सेकेंड्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखोगे कि वेंट्रिकल कंट्रैक्शन थोड़ा सा फेज, सब फेजेस में होती है। इनिशियल सब फेज में जो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये एवी वाल्व्स क्लोज होते हैं, और इनके क्लोज होने से हम सुनते हैं एक साउंड जिसको हम बोलते हैं लब या फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है ना। सो द कंट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू सब फेजेस, इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। मैं ये डिस्कस नहीं करता, बट इट डजंट मेक सेंस अगर हम इन सब फेजेस में इसको डिस्कस ना करें, ठीक है। तो पहला सब फेज क्या है, पहला सब फेज है प्रोटोसिस्टोल, प्रोटोसिस्टोल। तो प्रोटोसिस्टोल के वक्त क्या होता है, इट इज बिगिनिंग है ये कंट्रैक्शन का, और इसमें क्या होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और एवी वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं एंड दैट कॉजेस फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये बिगिनिंग है कंट्रैक्शन का, इट इज बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है प्रेशर increases and causes closure of AV valves, ठीक है ना, जिस वजह से क्या होता है that produces first heart sound, या जिसको आप बोलते हो लब, first heart sound और लब, ठीक है। तो ये पहला ये है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आइसोवोल्यूमिक, आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। नेक्स्ट फेज जो आता है इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल का है वो है आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन में क्या होता है कि वेंट्रिकल नाउ जब ये क्लोज हो गया, वेंट्रिकल इसके बाद बहुत और कंट्रैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि एओर्टा जो है जिसमें वेंट्रिकल को पंप करना है ब्लड, लेट मी एक्सप्लेन दिस इज ऑन अनदर स्लाइड, कि यहाँ पे अब क्लोज हो गया है, ए वाल्व्स क्लोज हो गए, अब वेंट्रिकल को यहाँ एओर्टा में ब्लड पंप करना है, ठीक है, लेकिन एओर्टा में ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वेंट्रिकल को कंट्रैक्शन कंटिन्यू रखनी पड़ती है और अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, सो दैट इसका वेंट्रिकल का अपना प्रेशर एओर्टा से ज्यादा हो जाए एंड फिर जो ये वाल्व्स होते हैं यहाँ पे सिमिलर वाल्व्स जो होते हैं ये खुल जाए। लेकिन कुछ टाइम तक वेंट्रिकल जो अपना प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है ये सिमिलर वाल्व्स ओपन नहीं होते, क्योंकि अगर चाहिए इंक्रीज भी कर रहा होता है अपना प्रेशर, फिर भी वो प्रेशर एओर्टा से कम होता है, ठीक है ना। अब ये फेज जिस द्वारा वेंट्रिकल अपना प्रेशर बिल्ड कर रहा है लेकिन स्टिल इट इज नॉट एबल टू क्रॉस द प्रेशर ऑफ एओर्टा, इस दौरान वेंट्रिकल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दैट इज व्हाई हम इसको बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन जो है ये मिडिल फेज है, इट इज मिडिल फेज ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इस दौरान क्या होता है प्रेशर राइजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, बट स्टिल लेस देन एओर्टा, but still less than aorta, therefore delta volume 0,
इसलिए चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेमिक कंट्रैक्शन। अब अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से ज्यादा हो जाएगा, एंड जब एओर्टा से ज्यादा हो जाएगा प्रेशर, तो ये सेमिनल वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, तो सारा का सारा ब्लड इजेक्ट हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स, सारा का सारा ब्लड इजेक्ट हो जाता है इनटू वेंट्रिकल्स, जिसको हम बोलते हैं रैपिड इजेक्शन। तो थर्ड फेज जो आता है दैट्स कॉल्ड इजेक्शन फेज। थर्ड फेज जो आता है इस कंट्रैक्शन का दैट्स कॉल्ड इजेक्शन फेज। तो इजेक्शन फेज में क्या होता है कि प्रेशर सरपासेस एओर्टा, प्रेशर सरपासेस एओर्टा, प्रेशर सरपासेस एओर्टा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन, सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन एंड ब्लड गोज इनटू एओर्टा, ब्लड गोज इनटू एओर्टा। स्टिल आई एम डिस्क्राइबिंग इट इन ए वेरी ब्रीफ वे, ठीक है ना, मैं ज्यादा इसको खींच नहीं रहा हूं डिस्कशन को, सो दैट हमारा जो पर्पस है वीडियो का वो पहले कंप्लीट हो जाए, अननेसेसरी डिस्कशन लंबा ना हो। So that was about the ventricular systole, जिसमें वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड एओर्टा में जाए 0.3 सेकंड्स तक। और पहले फेज, सब फेज में प्रोटोसिस्टोल में एयू वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे फर्स्ट स्टार्ट साउंड आती है। फिर दूसरे फेज में कंटिन्यूअसली प्रेशर बिल्ड होता है बट स्टिल रिमेन्स लेस देन एओर्टा, एंड फिर तीसरे फेज में प्रेशर अल्टीमेटली एओर्टा से ज्यादा हो जाता है और सेमिनल वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, ब्लड एओर्टा में जाता है। अब देखो इसके बाद वेंट्रिकल हो जाता है रिलैक्स, लेकिन एट्रियम ऑलरेडी रिलैक्स हो चुका होता है, ठीक है ना। तो दोनों रिलैक्सेशन में आ गए तो हम बोलते हैं उसको जॉइंट डायस्टोल। तो नेक्स्ट इज द जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना, जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्सेस, वेंट्रिकल रिलैक्सेस अपॉन ऑलरेडी रिलैक्स्ड एट्रियम, अपॉन ऑलरेडी रिलैक्स्ड एट्रियम। तो भाई जो आपका ऑलरेडी एट्रियम रिलैक्स्ड है उसके साथ साथ अब आपका वेंट्रिकल भी रिलैक्सेशन में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना, मान लो ये आपका वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में आ रहा है, ठीक है ना, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में आ रहा है। अब देखो एवी वाल्व्स बंद हो गई थी बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल में ही, तो तब से ब्लड जमा हो रहा था एट्रिया में आपके, ठीक है ना। अब आपका वेंट्रिकल भी रिलैक्सेशन में आ रहा है। अब देखो जब बिगिनिंग में ही आपका वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में आता है, जब आपका वेंट्रिकल बिगिनिंग में ही रिलैक्सेशन में आता है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर घटने लगता है, एंड वेंट्रिकल का जब प्रेशर घटने लगेगा तो ये जो वाल्व्स थे यहाँ पे, ये जो वाल्व्स थे, तो बैक फ्लो ब्लड के बैक प्रेशर से ये वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो पहला ही सब फेज है इस जॉइंट डायस्टोल का, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का, इसमें आपके ये सेमिनल वाल्व्स फिर से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस इनके क्लोज होने से भी फिर से एक साउंड आती है जिसको आप बोलते हैं सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। तो अब कितना ड्यूरेशन होता है इस जॉइंट डायस्टोल का, ड्यूरेशन होता है इसका 0.4 सेकेंड्स, 0.4 सेकेंड्स, ठीक है ना। और इसके भी 3 सब फेजेस है, सब फेजेस है, और पहला वाला सब फेज उसको वो कहलाता है प्रोटोडायस्टोल, ठीक है ना। और प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है, प्रोटोडायस्टोल में जब यूं ही वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने लगता है तो एओर्टा से बैक, जो वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने लगता है तो एओर्टा से ब्लड वापस आने लगता है, ऐसे बैक प्रेशर आता है, और उस बैक प्रेशर से आपके सेमिनल वाल्व्स फिर से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बिगिनिंग है रिलैक्सेशन का, इट इज बिगिनिंग ऑफ रिलैक्सेशन, बिगिनिंग ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, और इस प्रेशर के डिक्रीज होने से सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वहां एओर्टा से बैक प्रेशर आ जाता है, ठीक है ना। सिमिलर वाल्व्स क्लोज्ड, सिमिलर वाल्व्स गेट क्लोज, ठीक है ना। अब इस क्लोजर से हमारे पास यहाँ पे आती है सेकंड हार्ट साउंड, इस क्लोजर से हमारे पास यहाँ पे आती है सेकंड हार्ट साउंड, या जिसको हम बोलते हैं डब। सो बिगिनिंग ऑफ द रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोडायस्टोल, एंड इसमें क्या होता है, प्रेशर कम होने लगता है एंड सेमिनल वाल्व्स क्लोज हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैक प्रेशर ऑफ एओर्टा, एंड उस क्लोजर से हम सुनते हैं सेकंड हार्ट साउंड, या जिसको बोलते हैं डब, ठीक है ना। अब देखो यहां से एओर्टा में प्रेशर कंटिन्यूअसली, ये एट्रियम में कंटिन्यूअसली ब्लड जमा हो रहा है, ठीक है ना, और वेंट्रिकल भी अब अपना प्रेशर घटा रहा है, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल में प्रेशर अब कम हो रहा है लेकिन एट्रिया में प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस प्रोटोडायस्टोल के बाद वेंट्रिकल का प्रेशर कंटिन्यूअसली कम हो रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वेंट्रिकल ने इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट किया होता है सिस्टोल के वक्त कि इसका प्रेशर अगर कम भी हो रहा होता है फिर भी वो बहुत टाइम तक एट्रिया से ज्यादा ही होता है।
तो इसलिए बहुत टाइम तक ये जो बीच में वाल्व्स है ना, हमारे यहाँ पे जो एवी वाल्व्स होते हैं वो ओपन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो वो जो बीच का टाइम है जिस दौरान वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, जिस दौरान प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है ना, बट स्टिल ये एवी वाल्व्स ओपन नहीं हो रहे हैं बिकॉज वेंट्रिकल का प्रेशर स्टिल ज्यादा है एट्रिया से, उसको हम बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, जिस तरह हम वहां पे बोला था हमने आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे दूसरा फेज हमारा आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन अगेन मिडिल फेज है, इट्स अ मिडिल फेज, इट्स अ मिडिल फेज, ठीक है ना। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान प्रेशर कम हो रहा है कंटिन्यूअसली, प्रेशर डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली, बट स्टिल लेस देन एट्रिया, बट स्टिल लेस देन एट्रिया। इसलिए कोई भी चेंज, देयरफॉर डेल्टा वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो, कोई भी चेंज वॉल्यूम में नहीं होता है क्योंकि एवी वाल्व्स नहीं खुल पाते, ठीक है। तो यह आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। बट यू नो कि अल्टीमेटली ये प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और वहां से प्रेशर राइज हो रहा है क्योंकि ब्लड जमा हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे जो एवी वाल्व्स है वो ओपन हो जाएंगे, एंड जब एवी वाल्व्स ओपन हो जाएंगे तो सारा जो जमा हुआ ब्लड है वो नीचे आ जाएगा, एंड इस ब्लड के नीचे आने से वेंट्रिकल अचानक से ब्लड से भर जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज रैपिड फिलिंग, ठीक है ना। तो थर्ड फेज क्या होगा, थर्ड फेज होगा रैपिड फिलिंग फेज, रैपिड फिलिंग फेज। तो रैपिड फिलिंग फेज लास्ट फेज है, लास्ट सब फेज है, लास्ट सब फेज है। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप्स बिलो एट्रियल प्रेशर, वो एट्रियल प्रेशर से कम हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, ऑल द accumulated blood comes into ventricles, all the accumulated blood comes into ventricles and causes their 70% filling, ठीक है, causes their 70% filling, ठीक है। So this was a brief discussion of the cardiac cycle. I think this is more than what you can write in your board examination, ठीक है ना। You can revisit you can rewind the video if you have missed something, ठीक है, and the rest of the details regarding cardiac cycle you can learn on your notebooks, okay, that you have already learned in your regular classes, ठीक है। Now next class is about the disorders of heart, and I have given you just two disorders. I have given you the question which asks you to differentiate between heart attack and heart arrest, and heart arrest is sometimes called as cardiac arrest. So I will write down these two terms, एक तो heart attack, ठीक है ना, and दूसरा यहाँ से heart arrest या जिसको आप बोलते हो cardiac arrest more properly, ठीक है ना। तो इन अक्सर students are often confused between these two terms, ठीक है ना, heart attack and heart arrest, ठीक है ना। Now let me tell you, heart attack is a problem of blood vessels, while heart arrest or cardiac arrest is a problem of conduction, electrical conduction in the heart, ठीक है ना। So heart attack, how does heart attack occurs? It occurs when a vessel, when one of the heart vessels gets blocked by a clot or thrombus, ठीक है ना। So it occurs when coronary artery, that is the artery of heart, get blocked by clots or thrombi, ठीक है। While cardiac arrest occurs, it occurs due to sudden loss of electrical conduction in heart, sudden loss of electrical conduction in heart, ठीक है। So heart attack is basically the blockade of coronary arteries, and the cardiac arrest is basically the loss of conduction in the heart. And heart attack is also called as myocardial infarction. It's also called as myocardial infarction, okay, it's also called as myocardial infarction, okay. Now I can list a lot of causes of heart attack and a lot of causes of cardiac arrest, but that is not asked for you in your examination, so you don't need to worry about that. So let's keep these two definitions in our minds, okay, and let's skip to next question, okay. So we are now in the last chapter of this session, okay, the locomotion and movement, and in this chapter the first question that you will be asked is the enumeration of all the bones in your body and classification of the skeleton. So let me tell you,
आवर बॉडी हैज 206 बोन्स, ऑल ऑफ यू नो, सभी जानते हैं कि 206 बोन्स है एडल्ट स्केलेटन में, और उन बोन्स को हम डिवाइड करते हैं एक्शियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्शियल स्केलेटन होता है हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज, बाकी जो हमारे लिम्ब्स है वो है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो टोटल बोन्स कितनी है हमारी, तो टोटल बोन्स हमारी बॉडी में है 206, ठीक है ना, और इसको हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, एक तो एक्शियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्शियल स्केलेटन मतलब, ठीक है ना, दैट इज स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब लिम्ब्स, अपर लिम्ब्स एंड लोअर लिम्ब्स। अब इसमें एक्शियल स्केलेटन में कितने आते हैं, इसमें आते हैं 126 बोन्स, सॉरी इसमें आते हैं 80 बोन्स, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने आते हैं 126 बोन्स। You have to just enumerate these bones, ठीक है, I am just, the question is just enumeration of these bones, okay। तो स्टार्ट करते हैं एक्शियल स्केलेटन से, ठीक है, जिसमें आपका स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है और रिब केज आता है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद स्कल। तो आई होप यू ऑल विल बी रिमेंबरिंग दीज नेम्स। तो स्कल, एक्शियल स्केलेटन में, तो स्कल में आपके पास होते हैं 20, तो 29 बोन्स है आपके, ठीक है, बट असल में टोटल, ठीक है, बट उसमें से आपकी बुक ने कुछ बोन्स को अलग रखा है, ठीक है ना, उसमें से आपकी बुक ने कितने बोन्स को, 7 बोन्स को अलग रखा है। तो 7 को अगर आप निकालोगे यहाँ पे आज आपको बच जाएगा 22 ही, ठीक है ना। तो 29 बोन्स है असल में, बट एनसीईआरटी इंक्लूड्स ओनली 22, और जो बाकी 7 बोन्स है दे आर कंसिडर्ड एज एडिशनल। तो एनसीईआरटी में वो उन बोन्स को एडिशनल माना गया है, ठीक है ना। तो अब चलो हम इन 29 बोन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, या उसमें से जो 22 मेन बोन्स और 7 एडिशनल बोन्स, ठीक है ना, 22 मेन और 7 एडिशनल। तो चलो पहले ही 22 मेन बोन्स को डिस्कस करते हैं। तो ये जो 22 मेन बोन्स है ये असल में दो जगहों पे, एक तो क्रैनियम में जो स्कल कैप में, जिसको आप स्कल कैप बोलते हो, और दूसरा फेस में, ठीक है ना। तो अब क्रैनियम में आपके 8 बोन्स है और फेस में आपके 14 बोन्स है, और यही 14 और 8 हो गया 22। अब कौन सी क्रैनियम में कौन सी बोन है, सबसे पहले ये फ्रंटल बोन है एक, ठीक है ना, पैराइटल बोन्स है 2, टेम्पोरल बोन्स है 2, ऑक्सीपिटल बोन है, और स्फिनॉइड इथिमॉइड होती है, ठीक है ना। लेट मी इन्यूमरेट दिस। सो 1 फ्रंटल बोन जिसको आप फोरहेड भी बोलते हो, 2 पैराइटल बोन्स जो ऊपर से होते हैं स्कल को, 2 टेम्पोरल बोन्स जो साइड से होते हैं, 1 ऑक्सीपिटल बोन जो पीछे के साइड से होते हैं, रियर हेड, ठीक है ना, 1 स्फिनॉइड एंड 1 इथिमॉइड, 1 स्फिनॉइड एंड 1 इथिमॉइड, ये 8 आ जाती है आपकी। अब फेस में आपके 14 बोन्स है, एक तो मैंडिबल है, एक मैक्सिला है 2, ठीक है ना, अपर जॉ, नेजल बोन्स, वोमर, इंफीरियर कॉन्के, ज़ाइगोमैटिक बोन्स है, चीक बोन्स, लैक्रिमल बोन्स, ठीक है ना, और पैलेटाइन बोन्स, ठीक है ना। तो लेट मी पहले इसमें मैंडिबल रखते हैं एक जो लोअर जॉ है, मैक्सिले रखते हैं 2 जो अपर जॉ है, ज़ाइगोमैटिक बोन्स रखते हैं 2 जो चीक्स है, नेजल बोन्स रखते हैं जो नोज का साइड वॉल बनाते हैं, लैक्रिमल बोन्स रखते हैं 2 जो आईज ऑर्बिट बनाते हैं, वोमर या जो नेजल सेप्टम में एक बोन होती है, ठीक है ना, इंफीरियर नेजल कॉन्के, ठीक है ना, जो नोज के अंदर होती है 2 बोन्स, एंड पैलेटाइन बोन जो पैलेट में होती है, पैलेट में, ठीक है ना, 2। तो ये टोटल बन जाती है 14, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। तो इफोस, अब ये 7 एडिशनल बोन्स जो है ना, उसमें एक है हायर्ड बोन। हायर्ड बोन कहाँ है, ये हमारी यहाँ गले के नीचे होती है, ठीक है ना, जो किसी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होती है, ठीक है ना, बिलो टंग। एंड 6 ईयर ऑजिकल्स है जो हमारी मिडिल ईयर में होते हैं, ईयर ऑजिकल्स, जिसमें 2 मैलियस है, एक ईयर में, एक मैलियस दूसरे ईयर में, 2 इनकस है, ठीक है ना, और 2 स्टेपस है। स्टेपस सबसे छोटी बोन है, 2 स्टेपस है, ठीक है ना। तो एक सुपरफिशियल रिवीजन
मैं आपको करा रहा हूँ। असल में मैलियस इनकस स्टेपस यहाँ से भी है, मैलियस इनकस स्टेपस यहाँ से भी है, तो दो मैलियस, दो ईयर्स में, दो इनकस, दो स्टेपस, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द 29 बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है। अब जो आपका वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम में इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वर्टिबल कॉलम में एडल्ट्स में 26 बोन्स होते हैं जिनको आप बोलते हो वर्टिब्रे, ठीक है ना, जिसमें आपके 7 सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं, यानी नेक में 7 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं थोरैसिक रीजन में, ठीक है, जिसमें आपके 5 लंबर वर्टिब्रे होते हैं एब्डोमिनल रीजन में, एक सैक्रम होता है जो फ्यूज होके बना है, और एक कॉक्सिक्स या टेल बोन होती है जो फ्यूज 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रे की फ्यूज होने से बनती है, ठीक है ना। ऐसे आपका वर्टिबल कॉलम होता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये सर्विकल है वर्टिब्रे है, ये थोरैसिक वर्टिब्रे है, ये लंबर वर्टिब्रे है, ये सैक्रम है, और ये कॉक्सिक्स है, ठीक है ना। तो 26 बोन्स होगी ये। और इसके बाद आपका रिब केज आता है, रिब केज आता है। इस रिब केज में आपको एक स्टर्नम होती है आगे, जिसको आप ब्रेस्ट बोन बोलते हो, ब्रेस्ट बोन बोलते हो, ठीक है ना। उसमें थोरैसिक वर्टिब्रे होते जो, लेकिन हमने काउंट कर लिए, थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं इसमें पीछे से, लेकिन वो वर्टिबल कॉलम के साथ ही आ जाते हैं। और इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें ट्रू रिब्स होती है, फर्स्ट 7 रिब्स, ठीक है ना, फॉल्स रिब्स होती है, ठीक है ना, 8, 9 और 10, और फ्लोटिंग रिब्स होती है 11 और 12, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स टोटल 24 आती है। 24 और एक हो गया 25, ठीक है ना, 25 वो हो गया 26 वर्टिबल कॉलम, और 29 ये आपका आ जाता है 80, ठीक है ना, ये आपका आ जाता है 80, ठीक है। तो ये आपका एक्शियल स्केलेटन हो जाता है। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन उसके बाद आता है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके अपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब्स आते हैं। तो सबसे पहले अपर लिम्ब्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अपर लिम्ब की जब हम बात करते हैं, अपर लिम्ब की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। तो ये मैं अपर लिम्ब को यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना, तो बोन्स दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखो अपर लिम्ब को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इनटू सर्टेन पार्ट्स। ये जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर। इसको, इस पार्ट को आप बोलते हो आर्म, इस पार्ट को बोलते हो आप फोर आर्म, एंड ये हैंड है, जिसमें इस पार्ट को आप बोलते हो रिस्ट, इस पार्ट को बोलते हो पाम, एंड इस पार्ट को बोलते हो फिंगर्स। अब देखो हर जगह कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ बोन्स है। अब पेल्विक पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर में 2 बोन्स है, एक तो पीछे से ये स्कैपुला जो ये ट्रायंगुलर बोन है, और आगे से कॉलर बोन या क्लेविकल। तो इसमें 2 बोन्स है, 1 स्कैपुला जिसको आप शोल्डर ब्लेड भी बोलते हो, और 1 क्लेविकल जिसको आप कॉलर बोन भी बोलते हो, ठीक है। अब आर्म में एक ही बोन है, इसको आप ह्यूमेरस बोलते हो, एंड जो आपकी फोर आर्म में इसमें 2 बोन्स है, इसमें एक रेडियस है और एक अल्ना है, ठीक है ना, 1 रेडियस 1 अल्ना 1 ह्यूमरस। हाँ, और रिस्ट में आपके पास 8 बोन्स होते हैं जिनको आप कार्पल्स बोलते हो, और यहाँ पे पाम में आपके पास 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, और फिंगर्स में आपके पास 14 डिजिट्स या फैलेंजीज होते हैं, ठीक है ना। अब जरा आप इनको गिनो, ये हो गए 1 2 3 4 5 5 और 8 हो गए
8 5 13, 13 और 5 हो गए 18, 18 और 14 हो गए 32। तो टोटल आएगा ये 32। कितने में? एक अपर लिम्ब में। अब बोथ साइड से कितना होगा? बोथ साइड से होगा 32 इंटू 2 यानी कि 64। यह आपका अपर लिम्ब का हिस्सा, ठीक है। सो अपर लिम्ब यहाँ पे आपका रहा, आप इन बोन्स को देख सकते हो, आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। अभी हम जाएंगे लोअर लिम्ब के पास, ठीक है। तो आप यू कैन लुक एट ऑल दीज बोन्स, 2 बोन्स इन द pelvic girdle, scapula and clavicle, 1 bone in the arm, humerus, 2 bones in the forearm, radius and ulna, 8 carpals in the wrist, 5 metacarpals in the palm, and 14 digits or phalanges in the fingers. Okay. Now let's go to lower limbs. Let's go to lower limbs. अब lower limbs को भी हम ऐसे diagrammatically समझते हैं। ठीक है ना। तो देखो लोअर लिम्ब को भी हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले लोअर लिम्ब का जो ये पहला पार्ट है जो स्टेबलाइज करता है इसको, दैट्स कॉल्ड एज पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल। फिर जो ये पार्ट है इट इज कॉल्ड एज थाई, ठीक है ना। फिर जो ये पार्ट है इट इज कॉल्ड एज लेग। इसके बीच में आता है ये पार्ट जिसको हम नी बोलते हैं। उसके बाद ये पार्ट है जिसको आप एंकल बोलते हो, ये पार्ट है जिसको आप सोल बोलते हो, एंड लास्ट पे टोज आते हैं, टोज। तो लेट मी काउंट द बोन्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। पेल्विक गिर्डल में एक ही बोन है जिसको आप बोलते हो हिप बोन, एक ही बोन है, कंटेन्स वन हिप बोन, वन हिप बोन, ठीक है ना, वन हिप बोन, एक ही हिप बोन है। अब थाई में देयर इज अगेन वन बोन दैट इज कॉल्ड फीमर। नी में भी एक बोन होती है दैट्स कॉल्ड पैटिला या नी कैप। लेग में 2 बोन्स होती है, एक होती है टीबिया और दूसरी होती है फिब्यूला। आपके एंकल में होते हैं 7 बोन्स जिनको आप बोलते हो टारसल्स। इस सोल में होते हैं 5 बोन्स जिनको आप बोलते हो मेटाटार्सल्स। एंड टोज में अगेन होते हैं 14 बोन्स जिनको आप बोलते हो डिजिट्स या फैलेंजीज। ओके, अब गिन लो भाई बोन्स। एक हिप बोन, एक फीमर, 2 3 पैटिला लेके, 4 5 टीबिया फिबुला लेके, 5 और 7 हो गए 12 टार्सल्स लेके, और 5 मेटाटार्सल्स जोड़ दो 17 और 14 हो गए 31। तो टोटल एक साइड का आएगा 31। अब बोथ साइड्स कितना आएगा? बोथ साइड्स आ जाएगा 62। अब चलो पूरा हिसाब लगाते हैं। लोअर लिम्ब्स का 62, अपर लिम्ब्स का 64, कितना हो गया? 126। प्लस कर लो एक्चुअल स्केलेटन का 80, हो गया 206। ये रहा आपका पूरा स्केलेटन सारी बोन्स इन्यूमरेट करके, ठीक है ना। होप यू आर ऑल सेटिस्फाइड, होप यू हैव ऑल लर्नड इन दिस एफिशिएंट वे। अब देखो, आप छोटा सा एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायग्राम बनानी है साइनोवियल जॉइंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। चलो, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट है फ्रीली मोबाइल जॉइंट, और इसमें क्या होता है, जो 2 बोन्स है उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको आप साइनोवियल फ्लूइड बोलते हो, और लुब्रिकेंट होता है, ठीक है ना। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक बोन है, दिस इज ए बोन, ठीक है। मान लो ये दूसरी बोन है और इनके बीच में साइनोवियल जॉइंट है, के बीच में साइनोवियल जॉइंट है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये जो साइनोवियल जॉइंट है इसमें 2 बोन्स जो है ना, दीज आर इनक्लोज्ड विद इन दिस कैविटी कॉल्ड साइनोवियल कैविटी, और उसके अंदर का मेम्ब्रेन जो है दैट्स कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो बनाते हैं जॉइंट कैप्सूल, जो बनाते हैं जॉइंट को स्ट्रेंथ देते हैं, दैट फॉर्म द जॉइंट्स कैप्सूल। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड होता है इस साइनोवियल जॉइंट के अंदर, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे बोन्स है, दोज बोन्स आर कवर्ड बाय थिन कैप ऑफ कार्टिलेज, जिसको हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं लेबल करता हूँ, आपको सारा समझ आ जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द बोन। व्हाट इज दिस? दिस इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज, जिसको आप आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हो, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज साइनोवियल कैविटी।
एंड इसके अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड. व्हाट इज दिस ब्लू कलर, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है ना, यही प्रोड्यूस करता है साइनोवियल फ्लूइड. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द कैप्सूल, ज्वाइंट कैप्सूल. दिस इज द ज्वाइंट कैप्सूल. ठीक है ना, आई होप यू गॉट इट. ओके ओके, दैट्स द डायग्राम ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. देखो अभी हमारे पास 3 क्वेश्चंस है. ठीक है ना, एक तो डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. ये बहुत ही आसान है. हमारे पास 3 टाइप ऑफ मसल्स होती है. ठीक है ना, एक तो होती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, तीसरी होती है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स. ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स. स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, चलो इनके बीच में डिफरेंशिएट कर दे क्योंकि आपका क्वेश्चन है. ठीक है ना, तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स जो है ना, दे आर प्रेजेंट ऑन बोन्स. ये बोन्स पे पाई जाती है. ठीक है ना, स्केलेटल पे. स्मूथ मसल्स कहाँ होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में. और रही बात कार्डियक मसल्स की, ये तो ऑब्वियस है, ये हार्ट में होते हैं. ठीक है ना, आर यू गेटिंग इट. कार्डियक मसल हार्ट में है, ये इंटरनल ऑर्गन्स में, और ये बोन्स पे. अब स्केलेटल मसल्स जो है ना, ये ऐसे, इनकी सेल्स होती है ऐसे सिलेंड्रिकल, और बीच में बहुत सारे न्यूक्लियर होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड. अब स्मूथ मसल्स ऐसे स्पिंडल शेप्ड होते हैं और एक ही न्यूक्लियस. कार्डियक मसल्स भी होते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल, लेकिन एक ही न्यूक्लियस. सो ये कैसे होता है, ये होता है सिलेंड्रिकल. सेल्स कैसे होते हैं इनके, सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनिशियल जिसको आप बोलते हैं. ये कैसे होता है, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनि न्यूक्लिएटेड. एंड ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड यूनि न्यूक्लिएटेड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनि न्यूक्लिएटेड. ठीक है ना, इस चीज का आप ख्याल रखना. नाउ इंपॉर्टेंट चीज, स्केलेटल मसल जो हमारे बोन्स पे, लाइक ये बाइसेप्स, ये हमारे कंट्रोल के अंदर है. ठीक है ना, तो यानी ये वॉलंटरी मसल्स है. तो ये है वॉलंटरी. स्केलेटल मसल्स होते हैं वॉलंटरी, हमारे अपने कंट्रोल में, अपनी विल पावर के अंदर. बट इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल के बाहर. और हार्ट इज डेफिनेटली इनवॉलंटरी. कार्डियक मसल्स आर आल्सो इनवॉलंटरी. ओके, नाउ मोर डिफरेंसेस. अब देखो स्केलेटल मसल्स को जो आप देखते हो ना, उन पे आपको ऐसे डार्क एंड लाइट बैंड्स मिलते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स मिलते हैं. इसी तरह कार्डियक मसल्स को भी आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स मिलेंगे. लेकिन स्मूथ मसल्स में आपको कोई भी डार्क एंड लाइट बैंड नहीं मिलेगा. डार्क एंड लाइट बैंड्स को हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस. तो इस वजह से हम बोलते हैं दे आर स्ट्राइएटेड. स्केलेटल मसल्स होते हैं स्ट्राइएटेड क्योंकि इनको डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं. ये दे आर आल्सो स्ट्राइएटेड. ठीक है ना, बट ये हमारे स्मूथ मसल्स दे आर अनस्ट्राइएटेड. इनको कोई भी स्ट्राइएशन या डार्क लाइट बैंड नहीं होता. और एक बात, स्केलेटल मसल्स जो है ना, दे गेट फैटीग्ड. आसानी से थक जाता है, फैटीग हो जाता है. ठीक है ना, बट देयर इज नो फैटीग इन द स्केलेटल मसल्स एज वेल एज कार्डियक मसल्स. ठीक है ना, देयर आर सेवरल मोर डिफरेंसेस, बट आई थिंक दीज आर quite a few differences you can write in your board examination. Okay, so rest of the differences they are not necessary with respect to your board of examination. तो इतनी differences आप याद रखो, board examination में इतना काफी हो जाएगा. ठीक है, तो let's go into the another question which asks you about the various steps of muscle contraction. ठीक है, this is very complicated question. Now actually the muscle events of muscle contraction they are divided into 2 types. ठीक है ना, एक तो there are न्यूरल इवेंट्स, ठीक है, या केमिकल इवेंट्स, एंड देयर आर मैकेनिकल इवेंट्स. ठीक है, तो सो मसल कंट्रैक्शन, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स. ठीक है ना, एक तो केमिकल एंड दूसरा मैकेनिकल. ठीक है ना, अब केमिकल क्या होता है, केमिकल मतलब ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन ला रहा है सिग्नल टुवर्ड्स द मसल्स. अब यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होंगे जब ये सिग्नल इसको देगा, वो केमिकल इवेंट्स है. अब उसके बाद मसल कंट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है ना, उसके बाद क्या वो क्या क्या इवेंट्स होंगे, उनको मैकेनिकल इवेंट्स बोलते हैं. तो केमिकल इवेंट्स मतलब विच ऑकर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है ना, सो सबसे पहले हम केमिकल इवेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है ना, केमिकल इवेंट्स. ठीक है ना, तो केमिकल इवेंट्स कौन से इवेंट्स है, दे ऑकर at
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब कैसा होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऐसे ही न्यूरॉन होता है साइनेप्टिक नॉब और ऐसे ही मसल होती है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं न्यूरॉन और मसल के कांटेक्ट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो यू माइट हैव रेड कि जो ही नर्व इंपल्स आती है इस न्यूरॉन के एंड पे, तो इस न्यूरॉन के जो ये जो इसका मेम्ब्रेन होता है, इस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जिसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं क्योंकि साइनेप्स में पहले ही आता है, इसको न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक बोलेंगे, मसल के मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक बोलेंगे। तो जो ही नर्व इंपल्स इस न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है यहाँ पे, दिस इज होल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, यानी नर्व और मसल के बीच में कंटैक्ट। अब जो है नर्व इंपल्स यहाँ पे पहुंच जाती, तो इस नर्व इंपल्स के पहुंचने से यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाती है, जिससे कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, पहला इवेंट। तो नर्व इंपल्स के आते ही, एक्शन पोटेंशियल के आते ही यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। उस कैल्शियम इन्फ्लक्स से फिर यहाँ जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है वो फ्यूज हो जाता है, किसके साथ, वो फ्यूज हो जाते हैं इस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है ना। और फिर उनके अंदर जो भी चीजें होती है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो ये है यहाँ पे कि कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाती है और कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, दूसरा यहाँ पे हो जाता है कि साइनेप्टिक वेसिकल इस कैल्शियम के इन्फ्लक्स से फ्यूज हो जाते हैं विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स लीक आउट हो जाते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये हमारे इस मसल के मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल्स होते हैं, ये उन सोडियम चैनल्स को बाइंड करके ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स हो जाता है, सोडियम इन्फ्लक्स। एंड इस सोडियम इन्फ्लक्स से नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो जाती है टू द मसल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद वो नर्व इंपल्स मसल के मेम्ब्रेन पे ट्रैवल करती है एंड अल्टीमेटली इन इन्वेजिनेशन से, जिनको हम टीडीब्यूल्स बोलते हैं, इनसे वो इंटीरियर ऑफ द मसल को पेनिट्रेट करती है। एंड देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल का है, वो इस नर्व इंपल्स को सेंस कर देता है बाय मींस ऑफ रायनोडिन प्रोटीन, डीएचपी प्रोटीन, डायहाइड्रोपैरिडीन प्रोटीन्स। एंड वो जब इस नर्व इंपल्स को सेंस करता है तो वो बहुत सारा कैल्शियम रिलीज कर देता है सार्कोप्लाज्म में, यानी मसल के साइटोप्लाज्म में, एंड वहां से बिगिन हो जाते हैं मैकेनिकल इवेंट्स। ओके, सो क्या क्या इवेंट मैंने बोला केमिकल इवेंट्स में पहले, तो मैंने क्या क्या बोला पहले, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, we have the fusion of the synaptic vesicles releasing neurotransmitters into the synaptic cleft, then neurotransmitters open the sodium channels resulting in transfer of nerve impulse onto muscle membrane or sarcolemma, then the nerve impulse penetrates into the muscle cell by means of these invaginations or tubules, and then sarcoplasmic reticulum senses this nerve impulse and releases a lots of calcium. I will not write anything right now on the board because all of this will be written on your notebooks, so I will just revise this again. You will note this. So first of all, what happens? So what happens? There is calcium influx into synaptic knob, via into presynaptic membrane. ठीक है ना? When the nerve impulse arrives, this nerve impulse opens this calcium channel, voltage gated calcium channel, and the calcium goes into this presynaptic membrane, the interior of presynaptic membrane, and that calcium then causes the fusion of synaptic vesicles. So what is the second thing happening here? There is fusion of synaptic vesicles, with presynaptic membrane, and what happens because of that? There is release of neurotransmitters. तो सारे के सारे neurotransmitters release हो जाते हैं किसमें, synaptic cleft में, इस स्पेस में मीटर्स। अब ये neurotransmitters नंबर थर्ड क्या कर दे, they open the sodium channels. तो neurotransmitters open sodium channels, ligand gated sodium channels on sarcolemma या post synaptic membrane, ठीक है ना, which results in generation of the nerve impulse on the sarcolemma. Then ultimately that nerve impulse is sensed by the sarcoplasmic reticulum, which releases a lot of calcium. So nerve impulse comes, then that causes opening of the calcium channels, calcium influx occurs, that calcium influx causes fusion of the synaptic vesicles with the presynaptic membrane, that causes release of the neurotransmitters into the synaptic cleft. Those neurotransmitters open the sodium channels on sarcolemma, the sodium goes inside, and because of that movement of sodium, influx of sodium, nerve impulse is transferred into the sarcolemma, and then the nerve impulse travels along the sarcolemma, and it is ultimately sensed by sarcoplasmic reticulum, which releases a lot of calcium. After that we have mechanical events.
After that we have mechanical events. After that we have mechanical events. Mechanical events start as soon as calcium comes into the sarcoplasm. ठीक है? तो basically we have these sarcomeres in the muscle. We have these sarcomeres, and these sarcomeres consist of these thin and thick myofilaments. These sarcomeres consist of these thin and thick myofilaments. This is the thick myofilament. This is the thick myofilament, and this is the thin myofilament. Thin myofilament. This thick myofilament is mainly made up of myosin protein, so we also call it myosin filament. And ये जो thin myofilament है, they are mainly made up of actin protein, so they are also called as actin filament. ठीक है? Now this myosin filament, it has these heads protruding out. ठीक है? And those heads have actin binding sites, and via these actin binding sites they can interact with the actin. But normally the actin also has myosin binding site, but those myosin binding sites are hidden by the troponin proteins. So normally it is not able to interact with them. But when the muscle begins to contract, those sites are exposed by the effect of calcium, which I recently showed you in this chemical events which came into the sarcoplasm. Okay, तो यहाँ पे calcium आ गया. अब हम देखते हैं क्या होता है. ठीक है? So let's first visualize the structure of this thin myofilament. तो फिलहाल मैंने बोला आपको मसल के अंदर ऐसे sarcomeres होते हैं. तो sarcomeres में thin myofilaments होते हैं और thick myofilaments होते हैं. और thick myofilaments में ऐसे myosin heads होते हैं. ठीक है? myosin heads होते हैं जिनके पास होते हैं actin binding sites, और actin के पास होते हैं myosin binding sites. ठीक है ना? तो let me show you the structure of this thin myofilament. So I will show you briefly. It needs a lot of background information जो आपने पढ़ी ही होगी. ठीक है? But let me briefly show you this thin myofilament, structure of thin myofilament. So this thin myofilament, it has two actin chains. These are actin chains. These are actin chains. Actin chains. And these along with these actin chains, we have tropomyosin chains also. Now this actin has myosin binding site. MBS means myosin binding sites at various intervals. But those myosin binding sites are normally hidden, covered or masked by these proteins, triplet proteins called troponins. So this is troponin complex. Troponin complex. Troponin complex. And this troponin complex has 3 units: troponin I, troponin T, troponin C. ठीक है? So यहाँ से मान लो मैं आपको यहाँ myosin head दिखा रहा हूँ जो myosin protein के पास होता है, और उस myosin head के पास क्या होता है? उसके पास होती है actin binding site. This actin binding site has to interact with myosin binding site during the muscle contraction. But normally this myosin binding site is hidden by this troponin complex, which has 3 subunits I, T and C. Now when the calcium arrives into the sarcoplasm, chemical events जब हुए तो calcium sarcoplasm में आया, और जो ही वो calcium sarcoplasm में आता है, वो calcium यहाँ पे bind करता है इस troponin C के साथ, and जो ही वो troponin C के साथ bind करता है, इस troponin complex की shape change हो जाती है, and जब इस troponin complex की shape change हो जाती है तो myosin binding sites expose हो जाते हैं. Let me show you on another slide. So the calcium has it is now bound with the troponin complex, and when it is bound with the troponin complex, it changes the shape of troponin complex, thereby exposing the myosin binding sites. Myosin binding sites. And once these myosin binding sites are exposed, this myosin head, which is already having actin binding sites, it has now the opportunity to interact with these myosin binding sites, and it can form this actin myosin complex. It can form this actin myosin complex. Actin myosin complex. Okay. So I hope you got my point. So what I was discussing the internal structure of the muscle. Brief things about the internal structure of muscle. Where I said that this muscle has the units called sarcomeres, where we have thin and thick myofilaments, and those thick myofilaments are having these myosin filaments are having these heads which are ready to interact with their binding sites on the thin myofilaments or actin myofilaments. And in this zoomed view, what we saw that this
actin filament has these myosin binding sites, but those are covered by troponin complex, and that troponin complex has three units, I, T and C, and normally these three components cover the myosin binding sites. But once the nerve impulse comes, calcium comes into the sarcoplasm, this calcium binds with troponin C, and that leads to change in shape of this whole complex, exposing the myosin binding sites, and after the exposure of myosin binding sites, actin myosin complex is formed. And once this actin myosin complex is formed, the head uses the energy from ATP, and it starts pushing the actin filaments towards the M line, and that causes reduction in the size of sarcomere, and the reduction in the size of whole muscle, and thereby the movement of one bone with respect to other. This is the brief discussion of muscle contraction. Let me write this down for you so that you can write it in examination. So mechanical events. So कब start होते? They start after calcium comes into sarcoplasm. After calcium comes into sarcoplasm. अब जो ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आया, ये क्या करता है? द कैल्शियम बाइंड्स ट्रोपोनिन सी, ठीक है, विच changes its shape. We changed its shape. What happens after that? There is exposure of myosin binding sites. There is exposure of myosin binding sites. And what happens after that? The myosin heads bind with these sites to form actin myosin complex. What happens after that? The myosin heads use hydrolyze ATP. They hydrolyze the ATP and use energy to push the thin myofilaments towards M line. Okay, I will show that to you. मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. तो ये फॉर एग्जाम्पल सार्कोमेर है. तो यहाँ पे आपका थिक मायोफिलामेंट है. तो इसके पास जो हेड्स है ऐसे, यहाँ से so they will push these thin myofilaments towards the M line जो सेंटर पे होती है इस जोन के, like this. Now इससे क्या होगा? Z लाइन नजदीक आएगी और सार्कोमेर छोटा हो जाएगा, और जब सारे सार्कोमेर छोटे हो जाएंगे तो मसल विल कंट्रैक्ट. ओके, सो दिस causes shortening of sarcomere, thereby the shortening of whole muscle leading to contraction. अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि इस शॉर्टनिंग से क्या होगा. मान लो एक बोन है यहाँ पे, मान लो ये ह्यूमरस है और मान लो ये रेडियस है. अब इनके बीच में मसल है, मान लो बाइसेप्स, और ये टेंडन इसको यहाँ से अटैच कर रहा है, ये टेंडन इसको यहाँ से अटैच कर रहा है. तो जब इस बाइसेप्स के अंदर सारे सार्कोमेयर्स शॉर्ट हो जाएंगे तो बाइसेप्स मसल भी शॉर्ट हो जाएगी. एंड जब बाइसेप्स मसल ऐसे शॉर्ट होगी तो इस टेंडन को एक रिलेटिव पुल लगेगा, एंड उस रिलेटिव पुल से ये बोन कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगी. तो मसल शॉर्ट हो गई, तो मसल के शॉर्ट होने से ऐसे मसल का साइज आप देखो, यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतना ज्यादा था. तो जब मसल शॉर्ट होगी तो इस टेंडन को पुल लगा, और उस टेंडन के पुल लगने से तो ये वाली बोन कुछ इस तरीके से मूव होगी. एंड हमारी पूरी बॉडी में इसी तरीके से मूवमेंट्स आती है. अब अगर वही बोन यहाँ पे गई है तो ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट करके इसको यहाँ पे वापस लाएगी, एंड यहाँ पे डेल्टॉइड इस तरह से कंट्रैक्ट करके इस आर्म को ऊपर ले जाएगी, एंड सो ऑन. तो एक ब्रीफ डिस्कशन था अबाउट द मसल कंट्रैक्शन. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
ये जो मैंने लास्ट पे इवेंट्स लिखे मैकेनिकल इवेंट्स यही है, जहाँ पे मैंने बोला कि स्टार्ट होता है जब कैल्शियम आ जाता है सार्कोप्लाज्म में और कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन सी को, जो फिर अपने पूरे कॉम्प्लेक्स की शेप चेंज कर देता है, जिससे फिर एक्सपोज हो जाते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। एंड वंस मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गए तो मायोसिन हेड्स जो है वो मायोसिन हेड्स उन साइट्स को बाइंड करते हैं और बनाते हैं एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। और जब वो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उसके बाद मायोसिन हेड्स एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और एनर्जी को यूज करते हैं टू पुश दीज थिन मायोफिलामेंट्स टुवर्ड्स एम लाइन जो सेंटर ऑफ द एज जोन पे होती है। एंड इससे क्या होता है, दिस कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, तो सार्कोमियर सारा शॉर्ट हो जाता है एंड पूरी मसल भी इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगी। एंड जब मसल की लेंथ कम हो जाएगी तो जो टेंडन्स है उनको रिलेट टू पुल लगता है, जिस वजह से एक बोन दूसरी बोन के रेस्पेक्ट में मूव हो जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द मसल कंट्रैक्शन दैट यू मे बी रिक्वायर्ड टू राइट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जहां आपको मैं बोल रहा हूं टू राइट डिस्क्राइब फ्यू डिसऑर्डर्स ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो 3 डिसऑर्डर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा मसल्स का आपके साथ। ठीक है, जो आप याद रखोगे, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। एक है जिसको आप बोलते हो मायस्थीना ग्रेव्स, मायस्थीना ग्रेव्स। दूसरा है जिसको आप बोलते हो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एंड तीसरा है जिसको आप बोलते हो टेटानी, टेटानी। बस सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से इनको डिस्कस करते हैं, ओनली सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डिसऑर्डर्स। ओके, तो मायस्थीना ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड टेटानी, आप सबको पता ही होगा ये 3 प्राइमरी डिसऑर्डर्स है मसल्स के। ठीक है, अब पहली बात मैं बता दूं, ये मायस्थीना ग्रेविस जो इसमें से है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। You might be aware about the autoimmune disorders. Autoimmune disorders happen when your own immune system attacks the organs or tissues of your body. While जो muscular dystrophy है, it is a genetic hereditary disorder. And जो tetany है, it is due to hypocalcemia. Hypocalcemia. ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो ये ऑटो इम्यून है, दैट इज ये डिसऑर्डर तब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी मसल्स को खुद ही अटैक कर रहा है, एंटीबॉडीज बनाता है हमारी मसल्स के अगेंस्ट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी ये हम रिसीव करते हैं फ्रॉम और पेरेंट्स। ठीक है ना, इस डिसऑर्डर के तो एक्चुअली जीन खराब होता है, इस डिस्ट्रॉफिन जीन खराब होता है, जिस वजह से डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बनता है और हमारी मसल्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते। एंड टेटानी हो जाती है हाइपोकैल्सीमिया से, यानी कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होने से। सो मायस्थीना ग्रेविस में क्या होता है असल में, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम produces antibodies, यानी कि destroying proteins against acetylcholine receptors. acetylcholine न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे मसल्स में। तो acetylcholine के जो रिसेप्टर्स है, अगर आपको याद होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऐसे, तो ये मसल है, तो मसल पे वो सोडियम चैनल्स थी जो एक्ट करता है एज रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर acetylcholine। तो हमारा इम्यून सिस्टम इसी रिसेप्टर को यानी इसी सोडियम चैनल को अटैक कर रहा है। ठीक है ना, अब जब ये सोडियम चैनल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इंपल्स को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा मसल के पास, एंड मसल के पास जब नर्व इंपल्स ट्रांसफर ही नहीं होगी तो मसल कंट्रैक्ट ही नहीं होगी। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वेयर योर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट acetylcholine रिसेप्टर्स, एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट nerve impulse is not transmitted to sarcolemma। तो nerve impulse sarcolemma को ट्रांसमिट नहीं होगी, जिस वजह से क्या होगा, there will be loss of muscle contraction, तो muscle contract नहीं होगी। and what is that loss of muscle contraction called? That's called paralysis। तो that's called as paralysis। तो जब भी कोई मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाती है उसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर where immune system produces antibodies against acetylcholine receptors and the nerve impulse is not transmitted to sarcolemma, and by that way there is loss of muscular contraction and what we call as paralysis। that loss of muscle contraction is called as paralysis। now दूसरे डिसऑर्डर पे जाते हैं जो कि मैंने बोला जेनेटिक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कैसे होता है? इट इज ड्यू टू म्यूटेटेड जीन ऑफ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन मतलब जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होती है, जब जीन खराब हो जाता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन डिस्ट्रॉफिन जीन। नाउ ये डिस्ट्रॉफिन है, डिस्ट्रॉफिन इज एसेंशियल प्रोटीन। जो डिस्ट्रॉफिन है, डिस्ट्रॉफिन इज एसेंशियल
प्रोटीन ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो अब जब म्यूटेशन होगी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की, डिस्ट्रोफिन के जीन की म्यूटेशन होगी, तो डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा। जब डिस्ट्रोफिन मिसिंग होगा मसल्स से, तो मसल्स विल अगेन बी नॉट एबल टू कंट्रैक्ट, अगेन मसल पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन, एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन, अगर आपके पास म्यूटेटेड जीन है डिस्ट्रोफिन का, तो डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा। तो एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन अगेन कॉजेज पैरालिसिस ऑफ मसल्स, अगेन कॉजेज पैरालिसिस ऑफ मसल्स। तो अगेन मसल्स की पैरालिसिस होगी, ठीक है। नाउ टेटानी इज ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, और इस हाइपोकैल्सीमिया से क्या होगा, मसल्स बिकम हाइपर एक्साइटेबल, एंड हाइपर एक्साइटेबल मसल्स जो है दे कंट्रैक्ट vigorously and that vigorous contraction is what we call as tetany. Okay, so it is due to hypocalcemia, hypocalcemia increases excitability of muscles, and muscles spontaneously, because उनकी excitability increase होगी, they spontaneously go into continuous contraction, continuous wild contraction, what we call as tetany. For example, मैं आपको बोलूंगा, ऐसे मान लो अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया है, तो मान लो नॉर्मली वो काम कर रहा है, अचानक से उसका वो हाथ को यूज कर रहा है, अचानक से उसके हाथ को ऐसे हो जाएगा, तो वाइल्ड कंट्रैक्शंस हो रही है हाथ में, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेटानी। ओके, सो टेटानी याद रखना हमेशा मोस्टली हाइपोकैल्सीमिया से होता है। एक बैक्टीरियल कॉज भी है टेटानी का, दैट इज क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, ठीक है ना, बट दैट इज वेरी रेयर नाउअडेज बिकॉज वैक्सीनेशन हुई है बहुत ज्यादा। तो nowadays most of the time is tetany hypocalcemia की वजह से ही होती है। तो these are some important disorders of the muscles. Okay, अब ये सारा डिस्कशन कंप्लीट हो रहा है, the whole discussion is complete now, but I still recommend one topic that you should revise very thoroughly again from your own notebooks, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे superficially डिस्कस किया, वो है muscle contraction, ठीक है। तो muscle contraction I was not able to deliver it fully in this session because this muscle contraction requires a lot of background knowledge about the muscles. I have tried to give you a crisp idea of the muscle contraction, which will be enough for your board examination, but in order to understand that crisp idea, you need to do some study at your home from your notebooks. I hope you will do that, and this will that will be all about this session, which covers your three important chapters: respiration, circulatory system, and locomotion movement. We shall meet again in new chapters that I may have to discuss with you. Until that time, have a good preparation, enjoy your preparations, and best of luck for your board examination. Thank you.